So, in the earlier lectures, we have studied about state and central and about the parliament. What are the legislative powers of the parliament? So, in this particular video, we will be discussing about the relationship between state legislature and the central or the parliament. ठीक है. So first of all we have to know what is unitary and federal structures. ठीक है. तो यूनिटरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? यूनिटरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज नॉट देयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट. तो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड यूनिटरी. ठीक है. This system is followed in many of the European countries like France, and in the Asian countries also the unitary type of system is followed. For example, like in Japan, in China, this kind of system is followed. That is the unitary. Only the central power of there is there, or a centralized type of administration of or legislation is there only. There is no distribution of power between state and the central. But another type of system is the federal system. Federal system is that system in which a distribution of power is there between state and the central. Both can make laws, both can have administration at their own levels. ठीक है. So there is some distribution of powers between central and state, and that system is called federal structure. ठीक है. तो वह federal structure is followed in India as well as in USA and other countries also. ठीक है. But the most prominent example is India and United States of America when it comes to the federal level of or federal structure or federal form of government. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे ध्यान दिया जाता है. तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, यानी कि स्टेट के पास भी एक लेजिस्लेचर है और सेंट्रल के पास भी एक लेजिस्लेचर है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट. ठीक है. तो अब दोनों के पास लॉ मेकिंग पावर्स हैं. तो जब दोनों के पास लॉ मेकिंग पावर्स होंगी तो एक रिलेशनशिप क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़े हों, जब कभी भी ये कोई दोनों के बीच में कोई नेक्सस हो, दोनों की लेजिस्लेटिव पावर्स के बीच में कोई नेक्सस हो, तो व्हाट विल हाउ दैट dispute or issues can be resolved, or what are the provisions which is already enshrined in the Constitution of India regarding the distribution of power when it comes to a nexus between legislature of on the central level and on the state level. ठीक है. तो इसीलिए जहाँ पर भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स या फिर कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट होनी कंपलसरी हो जाती है, और एक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इमर्ज होकर आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिफाइंड, टू बी कोडिफाइड. ठीक है. एज एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 245 टू 293. ठीक है. बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन और द रिलेशनशिप ऑफ between central and state is broadly categorized in the Constitution of India under three heads. That is, the first one is legislative, the second one is administrative, and the third one is financial. ठीक है. तो लेजिस्लेचर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कैसे लॉज बनाए जाएंगे. तो अगर लॉ कोई बनता है, कोई स्टेट का लॉ बनता है और कोई पार्लियामेंटेरियन लॉ बनता है, तो दोनों की क्या क्या टेरिटोरियल एक्सटेंट होगी, दोनों के एक दूसरे से लेकर नेक्सस क्या होगी, दैट ऑल दोज थिंग्स आर डिस्कस अंडर आर्टिकल 245 टू 255 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कि व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. एंड द थर्ड लास्ट इज द फाइनेंशियल पावर विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 264 टू 293. बट द मेन फोकस which is there in the syllabus is only legislative powers. क्योंकि ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर नॉट डेल्ट इन सो डिटेल एंड दे आर वेरी सिंपल पावर. दे आर ओनली क्वेश्चन of a little dealing. ठीक है. So the main importance which is giving in the syllabus is legislative power. So we will only discuss about the legislative parts of the Constitution of India. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ जो आती है व्हेन इट कम्स टू द लेजिस्लेटिव पावर, एक डॉक्ट्राइन आती है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन. इट्स ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. ठीक है. तो बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लेजिस्लेटिव पावर को सबसे पहले
तो टेरिटोरियल एक्सटेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, और टेरिटोरियल एक्सटेंट के बेसिस पे सबसे पहले डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है लेजिस्लेटिव पावर्स के रिलेशनशिप को, और दूसरा रिलेशनशिप जो बेस किया गया है वो सब्जेक्ट मैटर पे डील किया गया है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन। द फर्स्ट एंड द foremost important is territorial nexus. There is also a doctrine of territorial nexus. So first we will try to understand what is territorial uh, nexus in reality. What is territorial jurisdiction, ठीक है। तो टेरिटोरियल jurisdiction से क्या मतलब होता है, बेसिकली पार्लियामेंट की टेरिटोरियल jurisdiction क्या होगी कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑल ओवर इंडिया फॉर होल ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर होल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट हैज ऑथराइजेशन और हैज पावर टू लेजिस्लेट और टू मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया। ऐसे लॉज बनाता है पार्लियामेंट जो कि होल ऑफ इंडिया पे काम करते हैं, ठीक है। एज फार एज स्टेट लेजिस्लेचर इज कंसर्न, तो स्टेट लेजिस्लेचर की जो टेरिटोरियल एक्सटेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के अंदर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए लॉज बना सकता है, और जैसे कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, जो विधायक होंगे, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर किसके लिए लॉज बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर जो काम कर सकते हैं ऐसे लॉज बना सकते हैं। तो ये व्हाट इज दिस इज द टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है। तो अब ये दो तरीके की लेजिस्लेशन हो गई जो कि बहुत ज़्यादा इजी थी समझने के हिसाब से, कि पार्लियामेंट जो है इट विल मेक लॉज फॉर होल ऑफ इंडिया एंड स्टेट विल मेक लॉज फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तो दोनों के बीच में ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। लेकिन अब एक तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। इंडिया की अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसा लॉ बनाना है जिसको इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करना है, ठीक है, या फिर किसी कोई प्रॉपर्टी है इंडिया के बाहर भी उसको भी ऑपरेट करना है, तो ऐसे लॉ बनाने की पावर किसके पास है? ऐसे लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल या फिर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। ऐसे लॉज कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है ऐसे लॉज जो कि इंडिया के बाहर भी वर्क करेंगे, या फिर इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो उनके ऊपर भी अगर कोई लॉ बनाया जाएगा जो कि वर्क करेगा उनके ऊपर भी, तो ऐसे लॉज सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? ऐसे लॉज सिर्फ और सिर्फ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना सकता है। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, वेलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। ये टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट के रूप में भी इस केस को माना जाता है कि टेरिटोरियल नेक्सस जो डिसाइड हुई थी वो इसी केस से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की डिसाइड हुई थी, ठीक है। ये केस इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, कंपनी वॉज रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड बट दिस कंपनी वॉज द पार्टनर ऑफ एन इंडियन फर्म, ठीक है। एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है इंग्लैंड में, लेकिन इस कंपनी का एक पार्टनर कौन होती है? एक इंडियन फर्म भी होती है। तो मेजर ऑपरेशंस और मेजर प्रोजेक्ट्स जो ये कंपनी कर रही होती है, जो कि वॉलिस नाम की कंपनी होती है, ये जो कर रही होती है वो इंडिया में उस पार्टनरशिप फर्म के थ्रू ही कर रही होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इनकम इनकी जनरेट हो रही होती है वो ज़्यादातर मतलब एक बड़ा अमाउंट ऑफ इनकम दैट वाज जनरेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी was generating in India only, ठीक है। So a contention was put forward by the income tax commissioner of Bombay that as this company is generating a lot of income or a huge amount of income from India only, thus this though it's a British company, ये अगर कोई ब्रिटिश कंपनी भी है लेकिन इसका मेन जो ह्यूज अमाउंट है वो जनरेट इंडिया में ही हो रहा है इसकी इनकम का, तो वी शुड अप्लाई इनकम, मतलब इट शुड गिव इनकम टैक्स टू द इन इंडिया, ठीक है। तो यही पूरा कंटेंशन इसमें चलता है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन लॉस कैन बी मेड एंड हाउ कैन इट बी सब्जेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज़ बेस्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरी ये बात चलती है कि जब ये इतना बड़ा अमाउंट जो है वो इनकम का इंडिया में जनरेट कर रही है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो इसी में टेरिटोरियल डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस को डेवलप किया गया। बेसिकली ये क्या कहता है, इफ़ पार्लियामेंट वांट्स टू मेक लॉ देन देयर शुड बी अ रीजनेबल नेक्सस बिटवीन लॉ एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो लॉ और एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन, थोड़ी सी नेक्सस होना कंपलसरी है, ठीक है। तो चूंकि ये कंपनी जो थी ये मेजर अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स का जनरेट कर रही थी इंडिया में, दो ये कंट्री इंग्लैंड बेस्ड थी लेकिन इसका मेजर अमाउंट जो है वो इंडिया में जनरेट हो रहा था, तो ये हेल्ड किया गया
कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है अपनी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर को यूज़ करते हुए इस कंपनी को लायबिल कर सकती है, ऐसा लॉ बना सकती है कि जिससे इस पर्टिकुलर कंपनी को इंडिया को इनकम टैक्स देना पड़े। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर हो गया आउट ऑफ इंडिया की। तो ऐसी पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकता है। तो बेसिकली यही टेक्स्ट क्या है, यही डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का टेस्ट है इसी केस में, कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, लॉ अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, तो उस पर पार्लियामेंट की पावर्स हैं कि वो लॉ बना सकती है। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज एब्सोल्यूट। क्या पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर जो है वो एब्सोल्यूट है? जब भी लेजिस्लेशन की पावर की बात आती है पार्लियामेंट में, तो हमेशा ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेदर पार्लियामेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर इन लॉ मेकिंग। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट नो, इट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर व्हेन इट कम्स टू द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, इसका 3 एक्सेप्शन है जनरली। सबसे पहली एक्सेप्शन है आर्टिकल 240। ठीक है, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल बेसिकली 4 यूनियन टेरिटरीज से डील करता है, दामन एंड दीव, दूसरी है अंडमान एंड निकोबार, तीसरी है लक्षद्वीप, और दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, ये 4 यूनियन टेरिटरीज से ये चीज़ डील करती है। ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है कि अगर इन 4 यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, तो उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी पास पावर रखता है कि इंडिया में बना हुआ कोई भी लॉ, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ को वो चाहे तो इन चारों स्टेट पे अप्लाई करने से कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मना कर सकता है, या फिर उस लॉ में कुछ अमेंडमेंट करा सकता है, या उस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन करा सकता है, तब जाके उस लॉ को अप्लाई करा सकता है, जो कि वैसे पूरे इंडिया के ऊपर लागू हो रहा है क्योंकि उसने पार्लियामेंट ने उसको बनाया है। ठीक है, तो पहली एक्सेप्शन तो ये हो गई कि अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो वो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इन चारों स्टेट में उसको मॉडिफाई या अमेंड करा के या फिर बिल्कुल सही मना भी कर सकता है उसको अप्लाई करने में। ठीक है, दूसरी एक्सेप्शन है इसकी फिफ्थ स्केड्यूल। फिफ्थ स्केड्यूल किससे डील करता है, स्केड्यूल एरियाज से, मतलब शेड्यूल एरियाज जो होते हैं उनसे डील करता है। तो इसमें भी गवर्नर के पास पावर दी गई, गवर्नर चाहे तो पार्लियामेंटेरियन लॉस को उन जगहों पे अप्लाई करने से मना कर सकता है। उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर, जिस स्टेट में कोई स्केड्यूल एरिया आ रहा है, तो अगर गवर्नर चाहे तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर जो कि स्केड्यूल एरिया है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया किसी भी लॉ को अप्लाई करने से उसको मना कर सकता है कौन, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर है वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, पावर के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज द सिक्स्थ स्केड्यूल, दैट इज when a particular area belongs to tribal areas of these 4 states। कौन कौन सी 4 स्टेट्स, आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इन 4 स्टेट के अंदर जो ट्राइबल एरियाज आते हैं उनके ऊपर अगर कोई मतलब पार्लियामेंटेरियन, अगर पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है और वो चाहे कि इन चारों जगह पर वो अप्लाई हो, ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरियाज़ में, अगर ट्राइबल एरियाज़ में उस स्टेट का, इन चारों स्टेट का, आसाम का गवर्नर, मिजोरम का गवर्नर, मेघालय का गवर्नर या फिर त्रिपुरा का गवर्नर अगर चाहे तो वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को अप्लाई होने से उस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर मना कर सकता है कि इस जगह पे ये पार्लियामेंटेरियन लॉ अप्लाई नहीं होगा, उसको एप्लीकेशन से रोक सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी कर सकता है, तब जाके भी उसको अप्लाई करा सकता है। तो ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर लास्ट में क्या चीज़ आती है कि गवर्नर का अपॉइंट कौन करना है, गवर्नर अपॉइंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट फिर कहीं ना कहीं टाइटुलर हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो ये अगर प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो समथिंग, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट या द स्कोप इज गिवन कि इफ़ अ गवर्नर वांट्स टू परसू हिज पावर ही हैज़ ऑल द राइट्स टू परसू दैट पर्टिकुलर पावर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पावर कहीं पर किसी को भी नहीं दी जा सकती है डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हर एक ऑर्गन के ऊपर एक पुट चेक लगाया गया है ताकि वो अपनी पावर का एब्सोल्यूट यूज़ ना कर सके, क्योंकि एब्सोल्यूटनेस का मतलब हो जाता है आर्बिट्रीनेस। ठीक है,
एब्सोल्यूट का मतलब आर्बिट्री होता है कि कोई भी अगर किसी को एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए तो उसका आर्बिट्री यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है, भले ही उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है स्टेट से भी, लेकिन स्टिल जो दिक्कत है वो यही है कि वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उसके साथ भी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिटोरियल नेक्सस और द टेरिटोरियल powers of the legislature that is mentioned under article 245. Now we will come to another important thing, that is subject matter. हमने पहले पढ़ा था कि legislative power को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, legislative relationships को भी, that is territorial power, और दूसरी है subject matter। तो अब ये subject matter क्या है? बेसिकली आर्टिकल 246 डील करता है तीन लिस्ट से, जिसमें तीन लिस्ट होती हैं। पहली है जिन जिन सब्जेक्ट्स पे सेंटर स्टेट या फिर कभी कभी एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों भी लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी सब्जेक्ट मैटर्स पहले से ही डिसाइड कर दिए गए हैं, कौन से स्केड्यूल में है ये, ठीक है, तो इस 7th स्केड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th स्केड्यूल है उसमें सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। ये किस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं? जैसे डिफेंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, और एटॉमिक पावर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि होल ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, एटॉमिक पावर पार्लियामेंट के पास रहती है तो इस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, और आपके इसी तरीके के डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ बनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। तो इस तरीके के 100 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, जो कि फॉल होते हैं किस लिस्ट के अंदर? यूनियन लिस्ट के अंदर। इसके बाद दूसरी लिस्ट आती है, दैट इज द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे कौन लॉज बना सकता है? स्टेट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली लॉ जो बना सकता है वो कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। ठीक है, और तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, तो कोई ऐसी उसमें पाबंदी नहीं है, दोनों उसमें लॉ बना सकते हैं। स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल भी लॉ बना सकता है, यानी पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर कोई तरीके की इन दोनों लॉज के अंदर कोई दिक्कत आती है या फिर एक दूसरे से इनकन्सिस्टेंट होते हैं, तो ज़्यादातर जो लॉ प्रिवेल करेगा, लॉ प्रिवेल करता है सिर्फ पार्लियामेंट का। ठीक है, अगर कभी भी स्टेट लॉ में और सेंट्रल लॉ में कोई नेक्सस आती है, कोई दिक्कत आती है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? द लॉ विच विल प्रिवेल इज द पार्लियामेंटेरियन लॉ। इट इज़ ऑल्सो मैंशनड अंडर रिपंजेंसी दैट आर्टिकल 251 एंड 254 दैट आई विल बी डीलिंग इन लेटर ऑन। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हो गई? पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो गई कि सब्जेक्ट मैटर तीनों के डिवाइडेड हैं। सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लॉज बना सकता है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन लॉज बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स है, सब्जेक्ट मैटर्स है, उन पे दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि मान लो कोई अगर ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, कि जिस पे जो कि मेंशन नहीं है इन दोनों लिस्ट में। ठीक है, इन दोनों लिस्ट में मेंशन नहीं, इन तीनों लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है, न्यू सब्जेक्ट है, वो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो अब ऐसे नए सब्जेक्ट पे, इस न्यू सब्जेक्ट पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई कोई नया सब्जेक्ट आया, कोई नया सब्जेक्ट मैटर आता है, उस पर लेजिस्लेट करना है, तो अब वो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉ कौन बनाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 248 प्ले में आता है, जो है रेजिड्यूरी पावर्स। तो रेजिड्यूरी पावर, अगर कोई भी नया सब्जेक्ट मैटर है, नया सब्जेक्ट मैटर पे अगर कोई लॉ बनाना है, तो इसकी रेजिड्यूरी पावर किसको दी गई है? रेजिड्यूरी पावर इज गिविंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उस पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। ठीक है, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो उसके ऊपर लॉ बनाएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अगर कोई नया सब्जेक्ट मैटर आता है, इसी को रेजिड्यूरी पावर्स भी कहते हैं अंडर आर्टिकल 248। ठीक है, तो अभी हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे थे 246 के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, कि कब ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं जब यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉज को बना सकती है। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं? वैसे तो मैंने अभी पहले एक बात क्लियर बता दी कि स्टेट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन लॉ बनाएगा। हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं,
लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस भी हैं व्हेन यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। तो वो सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली तो है under article 249 when Rajya Sabha passes a resolution that central should legislate on the subject of state list। ठीक है, ये आर्टिकल 249 में दे रखा है, ये हमने पहले ही पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट दी स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो इसको पास करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है जो बिल्कुल लो टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी होती है। तो पहले तो आर्टिकल 249 में अगर राज्यसभा चाहे तो वो एक रेजोल्यूशन ला के स्टेट लेजिस्लेचर पे, पार्लियामेंट को लॉ बनवाने पे बनवा सकती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज मेंशन अंडर आर्टिकल 250 of the Indian Constitution that is during the proclamation of national emergency। कभी भी जब भी नेशनल एमरजेंसी एनफोर्स में होगी, नेशनल एमरजेंसी तभी कभी भी अगर एनफोर्स्ड होगी, ठीक है, प्रोक्लेम्ड हो चुकी होगी, ठीक है, तो ऐसे टाइम में नेशनल सारी पावर्स जो होती है वो स्टेट की किसके पास चली जाती हैं? वो सारी पावर स्टेट की ऑटोमेटिकली यूनियन के पास चली जाती हैं। ठीक है, तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉस। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि पहला सर्कमस्टेंस कौन सा हो गया? अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे। दूसरा आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर यूनियन लॉ बना सकती है। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है? तीसरी इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है ऑन स्टेट रिक्वेस्ट। ठीक है, जब खुद स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे कि इस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है अंडर आर्टिकल 252। जब स्टेट खुद से रिक्वेस्ट करती है कि लॉज शुड बी मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट, तो ऐसे में स्टेट लॉ बना सकती है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज वाइल इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जब भी किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराना होगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, रेटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, जो लॉ बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मैटर हो गया। तो इंटरनेशनल मैटर से ये भी कॉमन सेंस की बात से निकल के आ रही है कि अगर जब भी कोई इंटरनेशनल मैटर या फिर कोई बड़ा मैटर होगा तो उस पर लॉ कौन बनाएगा? उस पर लॉ बनाएगा हमेशा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चार सर्कमस्टेंसेस हो गए, इसमें से बेसिकली तीन तो वो सर्कमस्टेंसेस थे कि जब स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, और चौथा ये इम्प्लीमेंटिंग ट्वीटीज़ वाला, ये एक पावर ऑफ द पार्लियामेंट है कि ठीक है, जब भी कोई ऐसा लेजिस्लेचर आता है जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए बनाया जा रहा है, कोई सा भी लॉ अगर बनाया जा रहा है तो वो कौन बनाएगा? वो बनाएंगे यूनियन, दैट इज यूनियन लेजिस्लेचर, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिपेंजेंसी। ठीक है, बेसिकली ये दो आर्टिकल्स में डील है, आर्टिकल 251 में और आर्टिकल 254 में। आर्टिकल 251 तो सिंपल सी ये बात कहता है कि कभी भी आर्टिकल 249 दैट इज़ राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास करके स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाया जाता है, या फिर आर्टिकल 250 दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लॉ बनाया जाता है। ठीक है, और उसी सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट का भी कोई अपना पहले से बना हुआ लॉ है। ठीक है, तो जब तक नेशनल इमरजेंसी चलती रहेगी या फिर जब तक पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर लॉ पे, उस सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट राज्यसभा के रेजोल्यूशन का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 249 में उसके तहत कोई लॉ बनाता है, तो जब भी ये दो सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट होंगी, तो अगर ऐसे टाइम पे कोई भी पार्लियामेंट का लॉ होगा, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लॉ उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे होगा और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में आएंगे। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे बनाया गया पार्लियामेंट का लॉ स्टेट सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है, और एक पहले से लॉ था स्टेट का उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, दोनों अब आ गए कॉन्ट्रडिक्शन में। तो ऐसे सर्कमस्टेंस में जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी, पार्लियामेंट का लॉ जो है वो स्टेट लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। ठीक है, इस कंडीशन समझ में आ गई। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट में एक लॉ बनाया, ठीक है, उसी सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट का पहले से कोई लॉ था या फिर स्टेट ने बात को कोई लॉ बनाया उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे,
तो और वो दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्शन में आ गए कि जो स्टेट ने लॉ बनाया था और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था वो आपस में उस एमरजेंसी के दौरान कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहे हैं। तो जब भी ये कॉन्ट्रडिक्शन एमरजेंसी के दौरान खड़ा होगा, तो जब तक एमरजेंसी लगी हुई है, दोनों लॉज में से पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, आप समझ में आ गई। ये तो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है आर्टिकल 251 जो है। लेकिन आर्टिकल 254 क्या कहता है? आर्टिकल 254 इससे एक कदम आगे जाता है और वो ये कहता है कि कभी भी अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट, कोई भी स्टेट लॉ पार्लियामेंट के कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा, कोई भी स्टेट लॉ अगर पार्लियामेंट के किसी लॉ के कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा? उस पर्टिकुलर कंडीशन में पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसका लॉ प्रिवेल करेगा? हमेशा पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ उसको प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉ के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, नाउ वी विल नो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल व्हेन इट कम्स टू द लेजिस्लेचर। मोर ओवर कुछ पावर्स, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स पे अच्छी खासी पावर स्टेट को भी दे रखी है और बहुत सी पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास भी है, क्योंकि पार्लियामेंट 100 सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बनाता है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट मैटर्स मैंशनड हैं और उसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट पे तो दो नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं रेजिडरी पावर हो या फिर इम्प्लीमेंटिंग पावर्स हो, तो बहुत सी पावर्स जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज़ यूनियन लेजिस्लेचर, दैट इज़ अ पार्लियामेंट को दे रखी हैं। लेकिन स्टिल स्टेट के पास भी बहुत सी पावर्स हैं और सेंट्रल की पावर भी व्हेन इट कम्स टू द लेजिस्लेशन एब्सोल्यूट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट a relationship between central and state when it comes to the legislature. In the next video we will be discussing another important doctrine, that is the doctrine of pith and substance. जब भी कोई लॉ स्टेट और यूनियन लॉ बिल्कुल एक दूसरे की थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन में आते हैं, तो वो डॉक्ट्राइन उस चीज़ से डील करती है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इन टूडेज लेक्चर।